Assalamu alaikum. Welcome to CS311 Analysis of Algorithms, Department of Computer Science, UET Lahore. The topic of this video is longest common subsequence that we will solve using the design technique of dynamic programming. It was a long break, so it is better to recall the course that we have studied so far. First of all, in this course, we analyzed some algorithms, some problems through the design technique of iterative algorithms, and we have covered divide and conquer design technique, and we solved the recurrence equation. We also have covered probabilistic analysis, and now we are in the module of dynamic programming in which we have covered some problems, factorial, Fibonacci, rod cutting, and matrix chain multiplication. The topic of this video is longest common subsequence, for which I will define the subsequence first. Subsequence of a string is zero or more characters left out. For example, I have a string x is equal to a, b, c, d, e. I will take some strings out of the x. x1 is equal to a, b, c. x2 is equal to cd, x3 is equal to bcd. You can see that the characters in the substring are consecutive and they maintain their position. I will take some subsequence x4 is equal to abe. You can see that the characters in the subsequence are not consecutive, but they maintain their position. The position of the characters are in the sequence. So I will take x5 ae, x6 is equal to ce. Unlike the substrings, subsequences are not required to occupy the consecutive position within the original sequences. The common subsequence of two strings S1 and S2 is the subsequence that is common to both S1 and S2. For example, I have a sequence AE. You can see that AE subsequence can be calculated, can be extracted from S1, and AE can also be found in S2. So it is common in both S1 and S2. Similarly, ADF is also common to both S1 and S2. TDF is also common to both S1 and S2. TDF. In the S2, I also have TD and F. Given the two strings S1 and S2, the longest common subsequence is the subsequence that is common to both S1 and S2 and has the maximum length. I have some examples of subsequences. First of all, FES, which has a length 3. It is common to both S1 and S2. FET, BFES, it has a length 4. BFET also has a length 4. We cannot have the length 5 subsequence out of S1 and S2. So the maximum length of the subsequence in the S1 and S2 in this case can be 4. So BFES and BFET are the longest common subsequences of S1 and S2. एलसीएस प्रॉब्लम की फर्स्ट एप्लीकेशन डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट में है। डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का डीएनए कंपेयर करने के बाद ये बताते हैं कि ये दो ऑर्गेनिजम्स आपस में कितने मिलते जुलते हैं, कितने सिमिलर हैं। अक्सर जब एक किसी शख्स की या किसी भी पर्सन की शनाख्त करनी हो गवर्नमेंट ने, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है, डेट इज डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट टेस्ट। सेकंड जो एप्लीकेशन है एलसीएस प्रॉब्लम की, वो डिक्शनरी में है। आपने अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा कि जब आप कोई वर्ड टाइप करते हैं तो उसके बाद आपको सजेशन देता है कि इसमें इतनी चेंजेस के बाद आप दूसरे वर्ड पे जा सकते हैं। अगर उस वर्ड में कोई मसला है, कितने एडिट्स के बाद, कितने इंसर्ट्स के बाद, कितनी अपडेट्स के बाद आप दूसरे वर्ड पे मूव कर सकते हैं। जो मिनिमम एडिट्स जिस वर्ड पे होंगे उसकी सजेशन आपको वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देगा। एलसीएस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग x
of length m which has the combination of the strings 2 raised to power m. These are the combination of the subsequences that can be extracted from the string x, and we have the string y of length n that has the combination 2 raised to power n. So what are the problems in the brute force approach? The problem is that we have the exponential combination of the subsequences. So to compare the length of the subsequences, we have to calculate all the combinations of the both strings x and y. So the time complexity in the brute force approach will be exponential. Can we have a better solution? So we are going to analyze this problem through the design technique of dynamic programming. Let's see the design recipe of DP. The first point, the first step in the design recipe of DP is to characterize the structure of an optimal solution. Second, recursively define the value of optimal solution. Third, compute the value of optimal solution. And the fourth step is construct the optimal solution from the computed information from the last step. डीपी का पहला स्टेप है कि आपने अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करना है। सबसे पहले आप नोटेशन डिफाइन करते हैं। नोटेशन के अंदर वी हैव टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई जिनकी आपने लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है। जो एक्स सब सीक्वेंस है या एक्स सीक्वेंस है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम x1, x2, x3, xn कहेंगे। जब आपको x नॉट या y नॉट या z नॉट कहा जाएगा डेट मीन्स वी आर रेफरिंग टू एम्प्टी सब सीक्वेंस। सो इसमें तीन केसेस हैं। पहला केस तो यह है कि x या y में से कोई भी स्ट्रिंग एम्प्टी है। सेकंड केस है कि जो लास्ट कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग्स का वो मैच करे। थर्ड केस है जो लास्ट कैरेक्टर है वो आपस में मैच ना करे। सो हमने ये कहा कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं x एंड y जिसकी हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है। जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे। सो पहले केस में जब कोई भी स्ट्रिंग आपका एम्प्टी है आपका आंसर एम्प्टी सब सीक्वेंस आएगा। सो फर्स्ट केस में जो आंसर है डेट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू c नॉट। सेकेंड केस में आपके पास दो स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू a b c d, सेकेंड y इज इक्वल टू a e d। सो इस केस में जो लास्ट कैरेक्टर है वो आपका d सेम है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका आंसर है उसमें d तो लाजमी इंक्लूड होगा। सो जो आपका आंसर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस d है उसके एंड पे d तो आएगा। जो बाकी आंसर है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बाकी गोल है डेट इज टू कैलकुलेट zk-1। सो जो फर्स्ट गोल था वो ये था कि एक लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जिसकी लेंथ k है उसे आपने कैलकुलेट करना है। अब आपका गोल ये है कि आपकी प्रॉब्लम छोटी हो गई है। सो यू हैव टू कैलकुलेट zk-1 यूनियन d। सो फाइनल आंसर विल इंक्लूड d as the last character of the zk, and now you have to calculate zk-1 to calculate the final common subsequence। जो केस 3 है इसके स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करने में उसमें जो केस 3 है वो ये है कि जो लास्ट कैरेक्टर है बोथ स्ट्रिंग्स x एंड y इनका लास्ट कैरेक्टर मैच ना करें a b d f, and second string is y is equal to e b c f d। सो इस केस में आपका फाइनल आंसर क्या होगा? डेट इज z, डेट इज योर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं कि आप फर्स्ट स्ट्रिंग में
x में से f निकाल लें, f को माइनस करें, तब आपस में इनको कंपेयर करने की कोशिश करें। इस केस में जो आपका आंसर है डेट इज LCS ऑफ x m माइनस 1 y n। सेकेंड केस ये हो सकता है कि आप y स्ट्रिंग में से d को निकाल दें, बाकी जो स्ट्रिंग बचा है उसको कंपेयर करने की कोशिश करें। सो इस केस में जो आपका फार्मूला बन सकता है डेट इज xm, क्योंकि आपने x कंप्लीट स्ट्रिंग लिया है, और y n माइनस 1। इनमें से जो भी आपको मैक्सिमम आंसर देगा डेट विल बी योर फाइनल आंसर। डीपी की डिजाइन एसपी में जो सेकंड स्टेप है डेट इज टू डिफाइन द रिकर्सिव इक्वेशन फॉर द स्ट्रक्चर डेट वी हैव डिफाइंड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डीपी। जो रिकर्सिव इक्वेशन हमारे पास आती है उसमें फर्स्ट बेस केस है डेट इज इफ x इज इक्वल टू x नॉट और y इज इक्वल टू y नॉट। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग x या y में से एम्प्टी है तब आपकी लेंथ ऑफ LCS विल बी 0। सेकेंड केस ये है कि जो लास्ट कैरेक्टर है दोनों स्ट्रिंग्स का वो मैच करता है, तो डेट कैरेक्टर विल बी इंक्लूडेड इन द आंसर ऑफ द LCS डेट इज 1। the length 1 will be added plus LCS xm minus 1 comma yn minus 1. That is your smaller problem that you have to solve to calculate the final answer of the LCS. अगर आपका लास्ट कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में से मैच नहीं करता तब आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स में से जो मैक्सिमम आंसर मिलेगा that will be your final answer, जो आपके xm है कोमा वाई एन माइनस 1। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्ट्रिंग कंप्लीट और सेकंड स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर आप ओमिट करते हुए उनको कंपेयर करते हैं। सेकंड केस ये हो सकता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर आप ओमिट करते हैं और सेकंड स्ट्रिंग कंप्लीट लेते हुए आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों में से जो आपको मैक्सिमम आंसर देगा डेट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द LCS। Let's calculate the example of two strings x and y and calculate the LCS of both strings a, b, e and a, e। इस पे सेकेंड केस अप्लाई होगा। सेकेंड केस के मुताबिक e जो है वो आंसर में शामिल हो जाएगा। आपके पास जो रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक आंसर आएगा डेट इज 1 प्लस ए बी कोमा a। So you have used e in both the strings, so you are left with a, b and a। अब ये जो प्रॉब्लम आपके पास आई है इसमें दो ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स का मैच नहीं करता, सो यू हैव टू राइट 1 प्लस 1 एज इट इज 1 प्लस LCS ऑफ a। तो सबसे पहले स्टेप में आप ये करेंगे कि x में से b को ओमिट करेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 एज इट इज LCS ऑफ ए बी x कंप्लीट स्ट्रिंग y में से आपने a को ओमिट किया तो y आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग बच गया। इसको अगर सॉल्व करें तो कोई भी स्ट्रिंग x या y में से एम्प्टी हो तो आंसर 0 आता है। 1 पहले से आपके पास मौजूद था, आंसर यहाँ पे आया 1। इस केस में अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं इसका आंसर आएगा 1 प्लस LCS ऑफ x नॉट कोमा y नॉट। सो ये 1 आपको ऊपर से आ रहा है और इसके लिए जो आपके पास वैल्यूज आई हैं डेट इज 1 प्लस LCS x नॉट कोमा y नॉट। सो हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रिंग एम्प्टी हो उसका आंसर 0 होता है। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर विल बी 2। सो इन दोनों में से आपको मैक्सिमम आंसर दिया है इस साइड ने, सो आंसर विल बी 2। इस जगह पे आपने ए को अपनी सीक्वेंस में ऐड किया, इस जगह पे आपने ई को अपनी सीक्वेंस में ऐड किया। In the third step of dynamic programming, we have to calculate or compute the value of the optimal solution using the recursive equation that we have defined in the second step.
So I have created a table in which we will fill the values. So I have example string bdcaba. So this is the x string, and here we have the y string. So इस टेबल को फिल करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस डिफाइन करूंगा. अगर मैं इस सेल को LCS ऑफ एक्स एम कोमा वाई एन की वैल्यू कहूंगा, इसके रेफरेंस से जो इससे ऊपर वाला सेल है डेट इज LCS ऑफ एक्स एम कोमा वाई एन माइनस वन. जो इसके लेफ्ट वाला सेल है डेट इज LCS ऑफ एक्स एम माइनस वन कोमा वाई एन. सो जो रिकर्सिव डेफिनेशन है वो ये कहती है अगर आपका लास्ट करेक्टर मैच ना करे उस केस में आपने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. तो अगर हमारा इस साइड से और इस साइड से करेक्टर मैच नहीं करेगा तो हम इन दोनों में से कोई मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. तो ये वाला जो सेल है डेट इज LCS ऑफ एक्स एम माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन. रिकर्सिव डेफिनेशन के मुताबिक अगर आपका ये वाला कैरेक्टर मैच करे तो आपने इस वैल्यू में 1 प्लस करना है. तो जैसे ही आपका ये वाला कैरेक्टर मैच करेगा आपका आंसर होगा 1 प्लस LCS ऑफ एक्स एम माइनस वन कोमा एन माइनस वन, डेट इज डायगोनल सेल. तो अब हम इस टेबल में वैल्यू फिल करेंगे. बेस केस के मुताबिक अगर एक्स नॉट डेट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग हो दोनों में से, तो आपका जो बेस केस है उसमें आंसर 0 आएगा. अगर y नॉट x की कोई भी वैल्यू हो, x की कोई भी लेंथ हो, y स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो, तब भी आपका बेस केस अप्लाई होगा. जो दूसरी वैल्यूज हैं उस केस में हम वही फार्मूला यूज करेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है. अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच नहीं किए तो आपका जो आंसर है वो इनमें से कोई भी मैक्सिमम वैल्यू होगी. सो इस केस में आपके पास कोई भी वैल्यू ली जा सकती है. सो मैं ये कहता हूँ कि मैंने लेफ्ट साइड से वैल्यू ली है जो मैक्सिमम वैल्यू है. सो दोनों वैल्यूज बराबर हैं, आप कहीं से भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं. सो इस केस में भी अगर आपका कैरेक्टर मैच ना करे आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं. इस केस में भी कैरेक्टर मैच नहीं किया, इस केस में ए और ए आपस में बराबर हैं, तो आप क्या करेंगे डायगोनल सेल में 1 प्लस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा. तो ये वैल्यू डायगोनल से आई है. इस केस में कोई भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं. सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1. सो अभी दोबारा आपका ए और ए दोनों साइड से मैच किया तो आप क्या कह सकते हैं इसमें से मैक्सिमम वैल्यू डायगोनल सेल में 1 ऐड करेंगे. अब हम सेकंड रो पे आते हैं. बी और बी आपस में मैच किया, सो 1 प्लस इन द डायगोनल सेल. इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट साइड. सो इस केस में बी और बी आपस में मैच किया, so 1 plus in the diagonal cell has a 1 value, so it will be 2. So maximum value from the left column. थर्ड रो में उसी तरह से वैल्यू फिल होंगी. मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द अपर सेल,
maximum value from any cell, I will take the value from that cell. Both cell matches, so answer will be diagonal plus 1 plus diagonal cell. So maximum value from the left cell, maximum value from the left cell, maximum value from the left cell. So इस केस में आपके पास मान जो है वो आएगा क्योंकि आपने वैल्यू मैच किया है, डायगोनल सेल में 1 ऐड होगा. सो मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सेल, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द अपर सेल, मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सेल. तो इस केस में बी मैच किया तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेंगे, इस केस में डायगोनल सेल में 1 ऐड करेंगे, डायगोनल सेल में 2 था, इस तरह से आपके पास 3 आ जाएगा. सो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में आपके पास आ जाएगी 3 फ्रॉम द लेफ्ट सेल. सो मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द अपर सेल 1 प्लस डायगोनल सेल, maximum value from the left cell, maximum value from the left cell, maximum value from the left cell, that is 3. Maximum value from the upper cell and maximum value from the left cell. So इस केस में again maximum value from the upper cell, maximum value from the upper cell, maximum value from the left cell, 1 plus the diagonal cell क्योंकि ए दोनों तरफ मैच किया, maximum value from the left cell. So इस सेल में ए और ए दोनों तरफ से मैच हुआ, so you have to add 1 in the diagonal cell. Again आपके पास बी जो है वो मैच हुआ 1 plus diagonal cell, maximum value from the upper cell, maximum value from the left cell, maximum value from the upper cell. बी और बी मैच हुआ 1 plus diagonal cell, और इस केस में आप मैक्सिमम वैल्यू कहीं से भी ले सकते हैं. आई एम टेकिंग वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट सेल. This is the pseudocode of LCS length, which is also available in the text that is chapter 15 on dynamic programming, article 15.4. We can analyze the time complexity of this pseudocode. Time complexity of this code is mn, which is very less than the exponential time that was available in the brute force approach. हमें इतना तो पता चला कि जो लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस की लेंथ है वो 4 है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो है क्या. उसके लिए हमें अपने सोल्यूशन को कंप्यूट की हुई वैल्यूज़ को बैक ट्रैक करना पड़ेगा. तो इसके लिए बैक ट्रैक करते हैं. सो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4. So from where the value is coming, it is coming from the left cell. So we have the left cell 4, which is taking the value from the diagonal cell. When we are taking the value from the diagonal cell, it means that character is the part of the LCS. So I will write here B, which is the part of the LCS, because here we have the diagonal value. So this value is coming from the diagonal cell 3. So here again the diagonal cell
A is the part of the longest common subsequence. So the 3 is coming from the diagonal cell 2, and that 2 is moving to the left, which is also taking the value from the diagonal cell. D is the part of the LCS. So we will again backtrack the information. This value is coming from the diagonal cell. Here we have again the diagonal cell 1. B is also the part of the longest common subsequence. So here's the answer. So the last step of the dynamic programming is constructing the solution. So we have constructed the solution. We have the answer B, D, A, B. So to revise the lecture, in dynamic programming, we have 4 steps of design recipe. Number 1, characterize the solution. Number 2, defining the recursive definition of optimal solution. Third, computing the values, fill in the table. Number 4, use the table to construct the solution. This exercise is from your textbook. First question is that you have to determine an LCS of two sequences which consist of binary digits. The second question is that you have to give the pseudocode to reconstruct. जब कंस्ट्रक्शन की बात होगी, सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने की बात होगी, तो इसका मतलब है कि डीपी का लास्ट स्टेप है. To reconstruct an LCS from the completed C table, this is the table in which we have calculated the values and the original sequence x is equal to x1, x2 up to xm and y is equal to y1, y2 up to yn in big O m plus n time without using the B table. B table means the arrows, the upper left and the diagonal arrows. The third question is that you have to give the memoized version of the LCS length that runs in the big O m n time. First of all, you have to write the recursive uh, code of the LCS length, and then you have to add the memory in your recursive pseudocode. So this is the end of the lecture. I will recommend you that you read the text and you have to submit the assignment, the exercise that I have explained in the last slide. So the exercise will be submitted on your course website.